Welcome back students. We are going to solve exercise 2.1 of polynomials today. Question number 1 is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? Let's start with the first part. First part is 4x square minus 3x plus 7. Here you can see only one variable x is involved in this polynomial. So it is a polynomial in one variable. If only one variable is involved in a polynomial, then it is called polynomial in one variable. For second expression, here you can see y square plus root 2. Y square plus root 2. Here you can see only y variable is involved, so it is also a polynomial in one variable. In next part, third, it is given that 3 root t plus t root 2. Here you can see root t is given. Root t is t to the power 1 by 2. लास्ट पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि जब भी रूट x होता है तो x का पावर 1 by 2 हो जाता है. तो ये देखिए, अब यहाँ पे पावर क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया. लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट पार्ट, हियर ये भी देखिए पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अपॉन y है. y जब भी अपॉन में होगा तो हम क्या इसको लिखेंगे, ये 2y टू द पावर -1 हो गया. यहाँ भी देखिए ये क्या हो जाएगा, इस टर्म को मैंने सॉल्व किया. ये देखिए यहाँ भी क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया. यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ गया है. ठीक है, इसमें क्या होगा, इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल है. ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है. नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. Write the coefficient of x square in which of the following? In each of the following, you have to write the coefficient of x square. You can see here, it is plus x square. Plus x square. If nothing is there, means it is multiplied by 1. So 1 is the coefficient of polynomial. In this case, it is minus x square. So minus 1 multiplied by x square. So the coefficient in this question is -1. In this case, the coefficient is pi by 2. But here in this question, the term x square is absent. So we can write it root 2x minus 1 plus 0 multiplied by x square. So coefficient in this polynomial is 0. Okay. Now next question. Question number 3. Give one example of degree 35 and a monomial. This is the first part, degree 45, and second part, a monomial of
degree 100. First part, degree must be 35. So we can write that term can be any 1, 2, 3. So we can write x to the power 35 plus x to the power 34 plus 2. It can be we can write only x to the power 35. It is also a polynomial of degree 35. We can write minus x to the power 35 plus 5. This is also a polynomial of degree 35. Now the second part. This is the first part. Now the second part. Monomial means the polynomial must have only one term. That is called monomial polynomial. So we can write x to the power 100. It is an example of a monomial of degree 100. Now question number 4. Write the degree of each of the following. You have to write degree. First part, 5x cubed plus 4x square plus 7x. वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए और चेक करिए कि क्या आपने जो किया है वो सही है. देखिए यहां पावर क्या है इसका 3, यहां इसका पावर क्या है 2 और यहां क्या है 1. इन तीनों में हाईएस्ट कौन है 3. So degree is 3. Second, 4 minus y square. बताइए यहां y का पावर क्या है 0, यहां क्या है y का पावर 2. तो डिग्री क्या है 2. डिग्री इज 2. थर्ड पार्ट, 5t minus root 7. यहां देखिए यहां t का पावर क्या है 1 और यहां क्या है 0. तो डिग्री क्या है डिग्री 1. यहां फोर्थ पार्ट में देखिए 3 क्या है 3 के साथ कोई भी वेरिएबल रखेंगे तो डिग्री क्या आएगी 0, क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. 3 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0. डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0. अच्छा एक जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है हमेशा याद रखिएगा. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज not defined. Okay. Now question number 5. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. आपको बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, मैं तीनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके लिखूंगा. आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा. देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 1 हो. देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री 1 है. पहला है फोर्थ जो है 1 प्लस x, इसकी डिग्री क्या है 1 है. फिर फिफ्थ वन क्या है 3 की, इसकी भी डिग्री क्या है 1 है. ठीक है, ये दो ऐसे पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल है. अब क्वाड्रेटिक देखते हैं. देखिए फर्स्ट में इसकी डिग्री क्या है x स्क्वायर प्लस x है, तो डिग्री क्या है 2. ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. फिर थर्ड देखिए, ये क्या है y प्लस y स्क्वायर प्लस 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. फिर 6
आर स्क्वायर, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, सेकेंड ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3। और सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, 7x3, इसकी भी डिग्री 3 है, इसलिए ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ, इसको सॉल्व करके फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।